Hello young physics learner. Today I am here to explain you electromagnetic induction. This is one of the beautiful and most important topic of class 12 physics. You know that till the time we have discussed 3 units of electrostatics and the 2 units of magnetostatics, and now we will start electromagnetic induction, that is based on electromagnetic theory. After this we will discuss one more important chapter, that will be AC, alternating current. This is also very important topic. It is very practical topic. We will discuss it later. And afterward, electromagnetic theory. This is the base of modern physics. So every chapter is very important here in the first book of NCERT, or these topics are very important here. So EMI, electromagnetic induction, you know that electric word, electro word, ये देखो, ये word अगर आप देखोगे, so electro word is linked with electricity and magnetic word is linked with magnetism. Okay, so this is the combination of the two. यानी यहीं से ओरिजिनेशन हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की. गॉट इट. इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वन मोर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो इन दोनों चैप्टर्स में हमने ये डिस्कस किया था, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हमने डिस्कस किया था दैट करंट कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट करंट कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. उसकी अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है. यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेती है, देन इट इज़ पॉसिबल, is it possible here that magnetic field can generate electric current? If it is possible, then we can find a new source of electric current. आपको पता ही है ना, आपने क्लास 10th में पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एंड एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी का होल पर्पस क्या है, मेन मोटिव क्या है, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ आवर मेन मोटिव, क्या है मोटिव? मोटिव ये है कि हमें ग्लोबल होना है, ठीक है, हमें टेक्निकल होना है, हमें टेक्निकल अप्लायंस को यूज़ करना है, हमें टेक सेवी होना है, ठीक है. सो फॉर दैट वी मस्ट नीड मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. इज़ इट सो? सो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहाँ से आएंगे? जिनमें इलेक्ट्रिक करंट होगी, otherwise there is no purpose of electronic gadgets. And from where we get electric current? The source of that current that you read in class 10th, that the source of electric current, one may be hydroelectricity, geothermal energy, hydro energy, wave energy, fossil fuel energy. ठीक है. सो कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी आपने पढ़े थे 10th क्लास में. वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर था, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस यही थी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करनी है, वाटर एनर्जी के थ्रू, हाइड्रो एनर्जी के थ्रू वी कैन जनरेट दैट इलेक्ट्रिक करेंट. न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिक करेंट जनरेट होती है. सो आर होल सोल, अगर इन सारे पॉइंट्स को एक साथ आप कलेक्ट करो, देन व्हाट इज़ द होल सोल पर्पस? That whole sole purpose is to get current to use electronic gadgets, electronic appliances. Got it? So that is why the two scientists, one was Faraday. बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है ये पॉइंट. फेराडे पर्टिकुलरली EMI के लिए ही जाने जाते हैं. ऐसा नहीं है कि इन्होंने और कोई डिस्कवरी नहीं की है, बट बेसिकली इनका ये जो टॉपिक था, ये जो रिसर्च हाइपोथेटिकल रिसर्च इन्होंने की थी, और उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए थे. सो दैट वाज द माइलस्टोन इन द थ्योरी ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ द बेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. सो दैट इज़ वाई this is the importance of Faraday and the topic electromagnetic induction. So Faraday and one more scientist was here, Henry Faraday, Michael Faraday, and one more is Henry. So these two scientists had observed that phenomena on the basis of Oersted law.
they had observed, they had practically done that phenomena, that experiment reverse to the Oersted law. What was the Oersted law? That an electric current can generate magnetic field. Magnetic field can be generated by electric current. यही था. फेराडे ने कहा कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, देन it is also possible, it may be possible that current can be generated by magnetic field, the reciprocal of this one. केमिस्ट्री में आप लोग रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है. तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाए, तो हमें एक और सोर्स मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए, विच इज़ द मेन मोटिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, that this is the main resource of that human development, the globalization of human species, that is the to be tech savvy. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट तो हमें चाहिए. इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे सोर्सेज, आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो पढ़े थे, उसी का एक और सोर्स हमें मिल जाएगा, और वो सोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड. बाकी सोर्सेज के लिए पावर प्लांट बड़े बड़े लगाने पड़ते हैं. हाइड्रो पावर प्लांट लग रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है, जियोथर्मल पावर प्लांट लग रहा है, एंड वाटर वेव लग रही हैं, एंड वन मोर इज़ देयर. आपने ओशियन लेवल के पास देखा होगा, टाइडल एनर्जी के लिए लगते हैं, विंड एनर्जी के लिए लगते हैं, जो आप विंड एनर्जी सोर्स देखते हो. यू रेड अबाउट ऑल दिस. आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस थिंग बिकॉज दैट लेक्चर विल बी मोर इलेबोरेटेड. सो हियर my main motive is what? It is that how can we generate from the magnetic source, and this is the reciprocal of this Oersted law. Are you getting my point? This is very important. देखो बेटा, base is the most important thing and corresponding concept can be cleared when your base is strong. So base must be clear to you. What is your purpose? जब तक आपको पर्पज़ नहीं पता तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा. तो इस चैप्टर का पर्पज़ मैं आपको बता रही हूँ. क्या था फेराडे का पर्पज़, हेनरी का पर्पज़. फेराडे और हेनरी दोनों ने मिल करके ये एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये एक्सपेरिमेंट केवल इस पॉइंट को, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए था दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? सो उसके लिए जो और फेराडे ने और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, बेसिकली ये फेराडे एक्सपेरिमेंट कहलाता है बिकॉज हेनरी वाज इन सपोर्टिव रोल. तो फेराडे एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसको अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है. तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फेराडे के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से. ठीक है. दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. और इसी को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के फिनोमिना को, दैट इलेक्ट्रिक करंट जनरेशन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अभी इसमें एक मॉडिफिकेशन बाकी है, वो मॉडिफिकेशन अभी मैं आपको डेफिनेशन में बताऊंगी. बट अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको सिर्फ इतना समझना है दैट इलेक्ट्रिक करंट can be generated with the help of magnetic field, and magnetic field is one source of electric current and which is the main motive of human species. Got it? So that is the whole soul aim. Now we are going to discuss about Faraday experiment जो उन्होंने किया था, किसके लिए? इस electromagnetic induction phenomena के लिए. So let's start with that point. Before that I will tell you the definition of electromagnetic induction. So start with this point. First one is EMI definition. That after the experiment Faraday concluded the thing that changing magnetic field, changing, और इसे हम कह सकते हैं varying magnetic field can generate electric current. Okay, that is called electromagnetic induction. So that means the phenomena, this phenomena is called EMI. Okay,
that means generation of electric current with the help of changing magnetic field is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी जहाँ करेगी वहाँ पे करंट जनरेट हो जाएगी। जनरेटर क्या करता है, करंट जनरेट कर रहा होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होती है, जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। सो मोबाइल फ़ोन, जितने लैपटॉप्स हैं, every electronic bodies are based on this EMI phenomena, so that is why this phenomena is very much important. Okay, so that was asked कि ये जो करंट जनरेट होगी इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इस करंट को नॉर्मल करंट नहीं कहते, कन्वेंशनल करंट नहीं कह रहे, क्योंकि ये बैटरी से जनरेट नहीं हो रही है, ये कहाँ से जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से जनरेट हो रही है। सो दैट इज़ वाई दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट एंड दिस इज़ वेरी माइन्यूट इन अमाउंट। इसको जनरली स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज़ वेरी माइन्यूट। सो दैट क्वेरीज वॉज अराइज्ड एट दैट टाइम कि इतनी माइन्यूट करंट का करेंगे क्या, हमें एक स्मॉल 10 वॉट का बल्ब तो ग्लो करना नहीं है इस करंट से कि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हमें तो बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन्स, हमें लैपटॉप्स और हमें बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को दैट मीन्स स्विच ऑन करना है। तो उस कंडीशन में इस करंट का क्या रोल रह जाएगा। सो द रोल इज़ व्हाट कि ये जो स्मॉल अमाउंट में करंट जनरेट होगी, ये जो करंट जनरेट हो रही है वो सिंगल लूप से जनरेट हो रही है। अगर बहुत सारे लूप्स होंगे, नंबर ऑफ़ लूप से करंट मल्टीप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट थिंग, अगर हम उस सोलेनाइड के अंदर आयरन पीस डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि और ज़्यादा करंट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सो ये सारे बेसिक फैक्टर हैं जो करंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब 1 रुपी का क्या रोल है, 1 रुपी इज़ द बेसिक यूनिट, लेकिन 100 रुपीज़ बना तो 1 रुपी से ही है। 1 रुपी को 100 टाइम्स अगर हमें चाहिए तभी तो 100 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो माइन्यूट करंट जनरेट हुई थी, दैट फेराडे हैज़ गिवन दिस आंसर ओनली दैट दिस माइन्यूट करंट may roll up, may wrap up in the large amount of huge current, and you can see that a generator can that hold the whole electricity of household circuit. So ये कोई स्मॉल थिंग नहीं है। एक फैक्ट्री भी एक जनरेटर के थ्रू ऑपरेट हो जाती है, एक हाउस भी एक जनरेटर के थ्रू ऑपरेट हो जाता है, उसकी करंट के थ्रू ऑपरेट हो जाता है। सो दैट करंट इज़ सो मच लार्ज अमाउंट, इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ये तो बेसिक एंटाइटी बताई गई है, इट इज़ जस्ट लाइक द न्यू बॉर्न बेबी। ओके, और ये न्यू बॉर्न बेबी जब डेवलप होगा बाय डिफरेंट रिसोर्सेज तो ये एक लार्ज अमाउंट करंट में यहाँ पर इस इंड्यूस्ड करंट को हम डेवलप कर सकते हैं लार्ज अमाउंट करंट में। सो दिस इज़ द main theme of this electromagnetic induction phenomena, and it is very fruitful, very important phenomena of physics. So that definition is clear to you. Okay, अब मैं वो important experiment बताए जा रही हूँ, second point, that Faraday experiment. क्या हुआ था फेराडे के एक्सपेरिमेंट में। तो फेराडे के एक्सपेरिमेंट से पहले फ्लक्स जो मैंने आपको पहले बताया था उसका मैं एक रिव्यू बता रही हूँ। ये फ्लक्स होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द सेम थिंग वी कैन से अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस वन इज़ अ लूप, ये एक लूप है जो वायर से मिलकर के बना है। एक वायर ले लिया, उसमें हमने एक मेटलिक लूप ले लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक मैग्नेट यहाँ पे प्लेस्ड है, नॉर्थ साउथ पोलैरिटी इस तरीके से, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। ठीक है, सो देयर मस्ट बी सम एरिया ऑफ दिस लूप, सो देयर इज एन एरिया ए ऑफ दिस लूप। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो corresponding to this area we can find out the magnetic flux phi, which is equal to B dot A. B and A both are the vector, that means what, magnetic field and area vector. What is area vector? If this one is the area, the perpendicular, the normal vector corresponding to this particular area is called area vector, which is equal to unit vector multiplied by area. इसका एरिया ए मैग्नीट्यूड वाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड यू कैन मल्टीप्लाई इट विद द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, देन यू विल गेट द एरिया वेक्टर। तो
एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, किसी भी लूप से, किसी भी शेप के लूप से, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप हो या सर्कुलर शेप हो, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि सर्कुलर शेप बनाया जाए, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप भी बन सकता है. सो वट एवर बी द शेप ऑफ द लूप, लूप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओपन नहीं होना चाहिए. इफ़ इट इज़ ओपन वी कैन नॉट फाइंड द फ्लक्स. ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें तब मिलता है व्हेन वी हैव क्लोज्ड लूप. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोज्ड लूप होगा, वो शेप कुछ भी हो, ठीक है. It should be closed loop, it should not be open circuit. If it is closed loop, then we can find out the magnetic flux corresponding to it by the presence, in the presence of this magnet, and this the formula is what, phi is equal to b dot a. तो phi is equal to b a cos theta, where theta is the angle between b and a. अब अगर हम इस फील्ड लाइन के बेसिस पे देखो तो ये फील्ड लाइन जो स्ट्रेट अभी जा रही है, ये एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच में एंगल बन रहा है 0. तो एरिया वेक्टर से एंगल देखना है यहाँ पर, जो थीटा एंगल है दैट इज इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. सो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस देन इट इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर. दैट मीन्स in this case theta is equal to 0, and then only we will get the value of flux here, ba cos 0 which is equal to ba. 90 अगर हो गया, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से निकल रही है ऐसे, तो ये देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और ये है एरिया वेक्टर दिस वन, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री. अब 90 डिग्री एंगल पे तो cos 90 क्या हो जाता है 0. सो यहाँ पे फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. तो वी कैन फाइंड आउट द फ्लक्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस एरिया एंड मैग्नेट, ठीक है. मैग्नेट की जगह पे आप दूसरा करंट कैरिंग कॉइल भी रख सकते थे. यहाँ पर इस मैग्नेट को मैंने हटा दिया और यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल रख दी. पता है ना आपको, ऑर्स्टेड ने कहा है कि अ करंट कैरिंग वायर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. तो यहाँ पर करंट जो जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इसके बेसिस पे मुझे डायरेक्शन भी यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो, इस डायरेक्शन में होना चाहिए ये. क्यों, देख लो, ठीक है. ये इस तरीके से मूव कर रहा है दिस वन, ऐसे ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर आएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थंब से शो हो रही हैं एंड द कर्व्ड फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड निकल रही हैं, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज 2 हैं, ये आप लास्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हो. फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकेंड इज़ अ मैग्नेट. तो आप यहाँ पे मैग्नेट प्लेस करो या करंट प्लेस करो, ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी. पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स पता चल रहे हैं. फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक सोर्स क्या हो सकता है, अ करंट कैरिंग लूप और अ मैग्नेट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर. एंड द थर्ड थिंग इज़ द लूप शुड बी क्लोज्ड. ये जो लूप का मीनिंग वैसे क्लोज्ड ही होता है, अगर ये ओपन आप कर दोगे तो ओपन में आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा, ठीक है. क्लियर है ये 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर फ्लक्स से रिलेटेड. अब यहाँ पर आप ये चीज़ भी देख लो कि जैसे जैसे हम ये पोजीशन वेरी कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज़्यादा होंगी, वो अभी हम एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, या समझ लिया है तो देन इट इज़ बेस्ट वन. अच्छे से समझना, छोड़ना नहीं बीच में, ठीक है. मैं जो बता रही हूँ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, और इतना आई थिंक कि इतना बेस बताना आपके लिए सफिशिएंट है एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए यहाँ पर EMI के लिए, ठीक है. सो यहाँ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं. तो एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी है. ये एक्सपेरिमेंट मैंने 10th क्लास के बच्चों को भी बताया है और अभी मैं 12th क्लास के बच्चों को भी इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता दी, क्योंकि सेम ओनली दिस वन इज़ द एक्सपेरिमेंट हियर. आप ऐसे ये फिगर ड्रॉ कर लो, सिंपल 4 फिगर ड्रॉ करनी है.
ठीक है, सेम काइंड की मैंने 4 फिगर ड्रॉ की। यू कैन सी दिस वन इज़ अ सोलेनाइड। सोलेनाइड कैसे बनती है, सोलेनाइड क्या होती है, ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसको अगर आपको देखना होगा तो मैं लिंक शेयर करूँगी इसका। यहाँ पर ये जो सोलेनाइड है ये वायर की रैपिंग है, कॉपर वायर रैपिंग लेते हैं हम, या हम एल्यूमिनियम वायर रैपिंग भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये सोलेनाइड हैं, यहाँ एक मैग्नेट मैंने लिया है, वो मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय फेराडे, और इसको हम फिज़िक्स लैब में भी कर सकते हैं। तो देयर इज़ नथिंग टू that there is nothing new here in this experiment, because this experiment was old, but we can also do this. It is very simple experiment. So NS साउथ पोलैरिटी इज टूवर्ड्स द कॉइल। ये जो नीचे आपका सर्किल दिख रहा है ये गैल्वेनोमीटर है। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर हमने इसलिए यूज़ किया है फेराडे के एक्सपेरिमेंट को, फेराडे के कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ पर फेराडे ने यूज़ किया था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जगह पे हम एक बल्ब भी ले सकते थे, बल्ब के थ्रू भी हमें पता चल जाता, बट हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लिया हुआ है। डिफ्लेक्शन बता सकता है, डायरेक्शन बता सकता है करंट का। सो हियर द गैल्वेनोमीटर विल फाइंड आउट the detection of, that means galvanometer detect the current in the circuit whether it is generated or not. So सबसे पहले तो फेराडे एंड हेनरी ने ये चेक किया, देखा अगर ये मैग्नेट स्टिल है, it is not moving either closer to the solenoid or far away from the solenoid. If it is not moving then there is no deflection in galvanometer. किसी भी केस में ये 4 फिगर केवल एक ही एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो अगर मैग्नेट स्टेबल है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई करंट जनरेट नहीं हो रही है, इंड्यूस्ड करंट नहीं है। तो फेराडे ने ये कॉन्सेप्ट निकला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए, वेरिंग होनी चाहिए। दैट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी वेरिंग, फर्स्ट पॉइंट। अब इन्होंने किया कि अगर ऐसे कुछ नहीं हो रहा है तो चलो मूव करा करके देखते हैं। सो यहाँ पर साउथ पोल को टूवर्ड्स द कॉइल मूव कराया। ओके जब साउथ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो करंट जनरेट हुई वो इस डायरेक्शन में जनरेट हुई। अब मैं बताऊंगी क्यों, किस तरीके से हो रहा है। ऐसे इस डायरेक्शन में जनरेट हुई, और क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट होगी तो गैल्वेनोमीटर की निडल लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। एल मीन्स लेफ्ट हियर, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न अभी ये एक्सपेरिमेंट के बाद बताते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि साउथ पोल टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव करा रहे हैं, टुवर्ड्स द कॉइल मूव करा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके देख लेते हैं। दिस वन इज़ फर्स्ट, दिस वन इज़ सेकेंड। ओके, फर्स्ट के बाद सेकेंड ये है। यहाँ पर क्या किया कि साउथ को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराने पर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ है। अगर साउथ पोल को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराएंगे तब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं, आप भी चाहो तो कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको पता ही है कि जेम्स वॉट कितने टाइम्स फेल हुए थे, पता है 10,000 टाइम्स फेल हुए थे इलेक्ट्रिक बल्ब की जनरेशन में। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं। यू कैन ऑल्सो बी अ साइंटिस्ट, you can also be a curious person, you can also be an intuitive person. So here the second point, second experiment is what, south pole is moving away from the coil, but learning is important here. जितना लर्न करोगे एक्सपेरिमेंट करने की उतनी रिक्वायरमेंट होगी, उतनी क्यूरियोसिटी होगी। So south pole is moving away from the coil. What will happen here? If south pole is moving away, then the deflection is just reverse to the previous one. यानी लेफ्ट साइड था, यहाँ पर राइट साइड डिफ्लेक्शन होने लगा। राइट साइड डिफ्लेक्शन का मीनिंग है दैट करंट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ऐसा हुआ। दैट मीन्स साउथ इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल, देन क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। साउथ इज पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। नाउ द थर्ड केस, नॉर्थ इज moving towards the coil, then what happened here, that
because north is moving, so the current is generated anti-clockwise and the galvanometer is deflected towards right, similar to this case, second case. And when the north is moving away from the coil, the opposite direction current is generated, that is clockwise, and the galvanometer is deflected towards left. तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया. तो इस एक्सपेरिमेंट में जो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी मैं इसमें एक अलग फिगर में बता रही हूँ. लेकिन यहाँ पर फेराडे के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, फेराडे हेनरी के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, दैट पॉइंट इज क्लियर दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली जनरेट current, and that current is called induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction. तो ये इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला. तो करंट जनरेट हो सकती है, और ये करंट ऐसी क्यों जनरेट हो रही थी उसके पीछे अब मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ. तो इसका एक एक केस ले लेते हैं. फर्स्ट केस, यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस ले लिया और ये मैंने सेकेंड केस थर्ड केस ले लिया. दीज टू केस वी विल टेक. तो जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा था, या अब मैंने सिंगल कॉइल बनाई है, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा था तो कॉइल में जो करंट जनरेट हुई वो इस तरीके से जनरेट हुई कि नॉर्थ के क्लोज आने को अपोज करने लगी. दैट मीन्स दैट इफ द नॉर्थ इज कमिंग क्लोजर टू द सोलेनॉइड, दैट द सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, दैट यू नो, it is from the previous classes. So that is why what happened, that the polarity, the side polarity which is closer to the magnet, that polarity is generated in such a manner that it opposes the closeness of the north polarity. Are you getting my point? अगर north है तो north का oppose करने के लिए यहाँ पर इस coil के इस साइड में जहाँ पर मैग्नेट मूव कर रहा है वहाँ पर कैसी पोलैरिटी जनरेट होनी चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी. तो यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट हो रही थी. और नॉर्थ पोलैरिटी का मीनिंग ये मैंने आपको पहले भी फिगर बताई थी. नॉर्थ को हम इस तरीके से बनाते हैं कि नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा होता है करंट का. तो यानी नॉर्थ पोलैरिटी इफ इट इज जनरेटेड, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज करंट इज जनरेटेड corresponding to that loop. Here this loop generated anti-clockwise current, and that is why the whole circuit is completed in anti-clockwise manner. That current is generated in anti-clockwise direction. So that is the main thing. That means अगर north आएगा तो coil में north polarity generate होगी, close by हो रहा है. अगर north दूर जा रहा है तो क्या होगा? If north is moving away, तो ये दूर जाने को अपोज करने लगेगी करंट जो जनरेट होगी. यानी जो करंट जनरेट हो रही है वो सोर्स के मूवमेंट का, जिस सोर्स से जनरेट हो रही है उस सोर्स के मूवमेंट का अपोज कर रही है. इफ़ नॉर्थ इज मूविंग अवे तो क्या होगा उस केस में कि यहाँ पर साउथ पोलैरिटी जनरेट होने लगेगी, यानी कि दूर जाने को अपोज कर रही है. ठीक है. दूर जाने का मीनिंग क्या होता है कि जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू कम होने लगेंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोलैरिटी से जनरेट होती हैं. ठीक है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब ये दूर जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी. यहाँ पे प्रीवियस फिगर देखो, ये फिगर जो हमने बनाई थी यहाँ पर क्या था, ये मैग्नेट अगर यहाँ रखा है इस तरीके से 3 लाइंस जनरेट हो रही हैं. मैग्नेट को हमने और पीछे कर दिया, यहाँ कर दिया, तो इसमें से ऐसे एक ही लाइन जा पाएगी क्योंकि मैग्नेट दूर हो गया, बाकी लाइन तो पहले ही डाइवर्ज हो जाएगी, या 2 लाइन जा पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा. तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैग्नेट की पोजीशन चेंज होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू द लूप चेंज होती है. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू द लूप को ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. ठीक है. फाई क्या था आपका, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा. और फाई होता क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक के केस में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह देते, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन एरिया. जो भी हम एरिया ले रहे हैं फ्लक्स के लिए, ठीक है, उस एरिया के कोरस्पॉन्डेंस में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास ऑन हो रही हैं उसको हम कहते हैं फ्लक्स.
सो दिस वन इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड दिस वन इज द फॉर्मूला. तो जब नॉर्थ पोलैरिटी मूव अवे होगी, दैट दूर जाएगी इस लूप से, तो नॉर्थ पोलैरिटी के दूर जाने पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगेंगी. कहाँ पर? कॉइल में. तो वो जो करंट जनरेट हो रही है, इंड्यूस करंट, वो करंट उसके दूर जाने का अपोज करेगी, यानी वो करंट इस डायरेक्शन में जनरेट होगी, क्योंकि करंट जब जनरेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है. ठीक है, ये ऑर्स्टेड प्रिंसिपल कहता है. रिमेंबर दिस थिंग, करंट अगर जनरेट हो रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रही है. देखो ये एक तरीके से ट्रिगर एक्शन हो गई. ये करंट जो जनरेट हुई, इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, इसने जो सोलेनाइड ली थी उसमें पोलैरिटी जनरेट की. तो वो जो पोलैरिटी जनरेट हो रही है, अगर नॉर्थ दूर जाएगा तो नॉर्थ के दूर जाने का अपोज करेगी. वो दूर कैसे अपोज कैसे करेगी? साउथ पोलैरिटी जनरेट करके. अब नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होता है, तो नॉर्थ दूर नहीं जाएगा, इट विल कम क्लोजर बाय द अट्रैक्शन, इट विल कम क्लोजर टू द कॉइल. गॉट इट. अब ये नॉर्थ जब क्लोज बाय आ रहा था तो उस समय क्या था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी. तो करंट जो जनरेट हुई उसका डायरेक्शन किस तरीके से आया कि डायरेक्शन इसने ऐसा बनाया कि फील्ड लाइन के इंक्रीज होने का अपोज करने लगी. कैसे अपोज करेगी? नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट करके. अगर नॉर्थ जनरेट होगी पोलैरिटी तो नॉर्थ एंड नॉर्थ में रिपल्शन होता है. रिपल्शन का मीन्स ये पास आने का अपोज करने लगेगी. बॉडी क्लोज बाय आ रही है और यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो क्या होगी? बॉडी उसी जगह पे रुक जाएगी. और अगर ये रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है देन बॉडी विल रिवर्ट बैक. गॉट द पॉइंट. सो दैट इज द केस कि अगर ये क्लोज बाय आ रही है तो क्लोज बाय आने को अपोज कर रही है करंट. अगर ये दूर जा रहा है तो दूर जाने को अपोज कर रही है. दूर जाने पर क्या हो रही है? खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है. और अट्रैक्ट किस तरीके से कर रही है कि यहाँ पर पोलैरिटी के थ्रू. तो डायरेक्ट पोलैरिटी कब जनरेट होगी? जब डायरेक्शन चेंज करेगी. सो करंट जो जनरेट होती है उसका डायरेक्शन इस बेसिस पर चेंज होता है जिसमें वो डिपेंड करता है कि पोलैरिटी, जो मैग्नेट, जो सोर्स है करंट के जनरेशन का, वो सोर्स क्लोज बाय आ रहा है कि दूर जा रहा है. क्लियर. अब ये तो मैंने नॉर्थ के केस में बता दिया. साउथ के केस में आप लोग खुद बताओ. दिस वन is the south pole coming closer to the coil. So what would be the direction of current here? South pole of the magnet is coming closer to the coil. तो क्या होना चाहिए? क्या होगा? साउथ पोल के क्लोज बाय आने को अपोज करना है. अपोज मीन्स रिपल्शन. रिपल्शन कब होगा? जब कॉइल में करंट उस डायरेक्शन में जनरेट हो जिससे साउथ पोलैरिटी डेवलप हो. सो यहाँ पर रिपल्शन तब होगा जब साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी. साउथ का मीन्स डायरेक्शन कैसा हो गया? क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर साउथ जब क्लोज बाय आ रहा था तो डायरेक्शन कैसा था? क्लॉकवाइज. क्लियर. अब साउथ पोलैरिटी दूर जा रही है. This one is moving away when the south pole of the magnet is moving away from the coil. यहाँ पे एक सोलेनाइड लिया. सोलेनाइड का मीन्स क्या है? नंबर ऑफ लूप्स. नंबर ऑफ लूप्स मीन्स 1 कॉइल. सो अवे जा रही है तो साउथ के अवे जाने को अपोज करना है तो करंट तो जनरेट होगी, श्योर है जनरेट होगी. हेयर यहाँ पे क्या होगा? साउथ जब क्लोज बाय आएगा देन ड्यू टू द रिपल्शन करंट का डायरेक्शन कैसे जनरेट होगा? दैट इट क्रिएट अ पोलैरिटी दैट अपोजेस द क्लोजनेस ऑफ दिस साउथ पोल. तो साउथ और साउथ में अगर रिपल्शन होता है तो ये साउथ पोलैरिटी डेवलप करना चाहिए इस करंट को. एंड साउथ पोलैरिटी मीन्स व्हाट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. साउथ में डायरेक्शन इस तरीके से बनता है. ठीक है. यहाँ पर साउथ इज मूविंग अवे, दैट मीन्स नॉर्थ पोलैरिटी. साउथ के अवे जाने को अपोज करने के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए. अट्रैक्शन नॉर्थ पोलैरिटी से आएगा. देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो हियर we will get the direction of current on the basis of the one more concept, and that concept is what? The induced current which is generated in electromagnetic induction phenomena that always opposes the cause by which it generates. Are you getting my point? I am repeating it. The induced current which is generated in electromagnetic induction phenomena always opposes the cause by which it generates. Clear? लिख लो इसे. क्योंकि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि
अगर ऐसा नहीं होगा तो बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ द प्रूव्ड फिनोमेना, और प्रैक्टिकली ये डायरेक्शंस आ रहे थे। इन डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस जो आ रहे हैं उसके बेसिस पे फैराडे की 2 हाइपोथेसिस निकल के आई। पहली हाइपोथेसिस थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, फर्स्ट। सेकेंड हाइपोथेसिस ये थी कि जो करंट जनरेट हुई वो कॉज का अपोज करती है। और ये बेटा आपने ये ध्यान रखना है, कीप इट इन योर माइंड, दिस होल प्रोसेस, ये जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस है, ये ऐसा ही नहीं है थ्योरेटिकली चल रहा है। इट विल बी यूजफुल इन योर क्वेश्चंस। रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे जनरेट होते हैं, डायरेक्शन में घूमते रह जाते हो। सो ज़रूरी है कि आपको अभी से प्रैक्टिस हो सिंस द स्टार्टिंग। तो कोई भी क्वेरी हो पूछ लेना मुझसे, इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसे छोड़ने वाला पॉइंट ही नहीं है। जो आप एक छोटा सा पॉइंट भी छोड़ोगे ना तो पूरा का पूरा जो आपका ये कॉन्सेप्ट है ना, ये एकदम उलझ करके रह जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं, क्लियर। सो दिस इज़ द फैराडे एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज़ द कंक्लूजन फ्रॉम द फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो चलो हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं, और इन कंक्लूजन को ही हम कहते हैं फैराडे लॉ। सेकेंड पॉइंट एक्सपेरिमेंट हो गया था, नेक्स्ट मैं करा रही हूँ फैराडे लॉ। तो ये जो अभी एक्सपेरिमेंट हुए इनके कंक्लूजन को ही, जो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं उन्हीं को फैराडे लॉ कहते हैं। सबसे पहला फर्स्ट जो लॉ बना दैट इज़ व्हाट, दैट EMI means induced current can be generated by varying magnetic field. Okay, first. Second, induced current opposes the cause by which it generated. इसको भी मैं फैराडे कंक्लूजन लिख रही हूँ, लॉ नहीं लिख रही हूँ, कंक्लूजन। एंड थर्ड वन इज, ये इंड्यूस्ड करंट जो आ रही है, ये इंड्यूस्ड करंट एक तरीके से EMF डेवलप कर रही है। दैट मीन्स इट इज़ द सोर्स ऑफ, यू कैन से इट एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, उसको भी मैं शेयर कर दूंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, यू रेड अबाउट इट, एंड इन दैट टॉपिक यू रेड अबाउट सेल्स। सो सेल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, दैट EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड वन मोर इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, एंड वन मोर इज़ इंटरनल करंट, इंटरनल वोल्टेज, इंटरनल करंट। तो यहाँ पर जो करंट आउटसाइड सर्किट को मिलती है वो कहाँ से मिल रही होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ओके। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ अगर करंट जनरेट हो रही है तो उसको करंट ना यूज़ करके इन्होंने यूज़ किया, फैराडे ने अपने लॉज में यूज़ किया। अभी कंक्लूजन में मैंने ये लिखा, इसलिए मैंने लॉज को कंक्लूजन में कन्वर्ट किया, कि कंक्लूजन में तो इन्होंने करंट लिखा क्योंकि करंट ही थी यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही थी, बट करंट जहाँ है वहाँ पर इलेक्ट्रिक सोर्स है, तो इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए करंट जहाँ जहाँ पॉइंट थे वहाँ पर उन्होंने EMF यूज़ किया। सो इंड्यूस्ड करंट की जगह पे इंड्यूस्ड EMF, क्लियर। और ऑब्वियसली जो डायरेक्शन आ रहे थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो EMF की पोलैरिटी हो जाएंगे। कैसे, ये देखो यहाँ पर बैटरी या सेल लगा हुआ होता है, यहाँ पर करंट चल रही होती है रेजिस्टेंस के थ्रू, यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी, तो करंट इस डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर पोलैरिटी सेल की चेंज कर दें तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर।
तो करंट का डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो तो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ की वजह से, यानी कि पोलैरिटी जो जनरेट हो रही है। यहाँ पर हमने कहा, जो मेरा सेकंड पॉइंट था कंक्लूजन में, इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कॉज बाय विच इट जनरेट, यानी इंड्यूस्ड करंट क्या कर रही थी, अपना डायरेक्शन चेंज कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस मैग्नेट। क्लियर? तो वो जो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसको हम कह सकते हैं पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड वर्ड यूज होगा, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस in accordance with the movement of that magnet। क्लियर? तो वो हमारा सेकेंड पॉइंट बन जाएगा। क्लियर? और थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए। तो वो अब लॉ में इसको कन्वर्ट करने के लिए इन्हीं पॉइंट्स को हम लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? कुछ अलग नहीं है, ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल नोट्स में आपको नोट्स जो भी प्रोवाइड होते होंगे डिफरेंट रिसोर्सेज से, उसमें नोट्स को बड़ा करने के लिए आपको यही कंक्लूजन्स को अलग और लॉज को अलग और बहुत सारे पॉइंट्स को अलग अलग फॉर्म में दिखाया जाता है। उसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? बट आपको क्या करना है कि आप जितना फोकस होकर के सुनोगे, मैं आपको जो टॉपिक बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितना फोकस होकर के सुनोगे, आई एम श्योर कि वो माइंड में फिट हो जाना है। और माइंड से बड़ी बुक कोई नहीं है, ठीक है? उसी माइंड को आपको एग्जामिनेशन में यूज़ करना है। लेकिन हाँ, बट ऑब्वियस रिटेन प्रैक्टिस इज़ मस्ट। तो मैं आपको कभी भी ये ग्रीड देने की कोशिश नहीं करूँगी कि हाँ मेरे पास बहुत अच्छे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको एक टॉपिक के इलाबरेटेड फॉर्म दूँगी। नो, नॉट एट ऑल। ओके, दैट these notes, if you will make the notes, you will get more clear about all these concepts. You will be more clear about all these concepts which I am telling here in this class, and that will be beneficial. This is old method of teaching, or you can say it, I always follow the old concept। ठीक है? और ये बहुत अच्छा मैनर है। अभी जो मिनिस्ट्री ने चेंज किया है, ये भी ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट जो अच्छा था, उसी को ये रीयूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये बाहर की कंट्रीज़ में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अपने माइंड को एक रूल्स के बीच में बाउंड मत करो, ओपन रखो। ठीक है? तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि नोट्स का ग्रीड मैं कभी आपको नहीं दूँगी, आप नोट्स खुद बनाइए। हाँ, मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी नोट्स बनाने में, आई एम हियर विद यू, आई विल प्रोवाइड यू द बेसिक डिटेल या टॉपिक। मैं आपको बता दूँगी किस पॉइंट से बनाने नोट्स। सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस उसको आपको अटेन करना है इन अ वेरी सीक्वेंशियल मैनर, यू कैन से इट एज। तो इंड्यूस्ड करंट जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया था, ये तो कंक्लूजन हो गए, जो कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट से निकल के आ रहे थे। अब मैं इसको लॉ में फिर से कन्वर्ट करती हूँ। दिस इज़ लॉ, फेराडे लॉज। इंड्यूस्ड करंट की जगह पे आप क्या यूज़ कर दोगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है ये, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट पॉइंट, induced EMF opposes the cause by which it generate। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। induced EMF changes polarity by in accordance with the motion of source। ठीक है? एंड थर्ड लॉ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी लॉ को एक्चुअल में फेराडे लॉ कहा जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स में रिलेशन बताया गया। वो क्या था? इंड्यूस्ड ईएमएफ generated is equal to rate of change of magnetic flux। So this is the mathematical expression। इस mathematical expression को हम ऐसे लिखते हैं, induced EMF को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। EMF होता है ये, तो E से रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल e से,
वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में उसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया गया था, इस तरीके का सिंबल था कर्सिव कैपिटल ई। यहाँ पर स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड करंट बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होती है, उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए हमने स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं, और ये स्मॉल लेटर ये शो कर रहा है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ बैटरी है। दिस वन इज ईएमएफ that is induced by varying magnetic field. That is the difference. So induced EMF is equal to delta phi, change, rate of change of flux. Change means delta phi divided by delta t. एक माइनस साइन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जो इंड्यूस्ड EMF जनरेट हुआ है वो पोलैरिटी चेंज करता है इन अकॉर्डेंस विद द मोशन ऑफ सोर्स, यानी ऑलवेज अपोजेज द कॉज। यहाँ पे ये लिख सकते हो अपोजेज द कॉज by which it generate. ठीक है। सो माइनस इंडिकेट दिस वन, इसका भी एक पूरा लॉ आ जाता है आगे, लेंज लॉ, बहुत अच्छा लॉ है, एडी करेंट्स वगैरह के लिए यूज़ होना है आगे, तो इसलिए लेंज लॉ को भी अच्छे से समझना है आपको। अभी फ़िलहाल आप ये समझो कि E इज इक्वल टू माइनस और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा दें डेल्टा टी इज टेंडिंग टू ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डेल्टा इज़ कन्वर्टेड इनटू डी, और डी में कन्वर्ट करने का मतलब है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके, डिफ्रेंशिएशन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फिनोमेना आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसको करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल बने हुए हैं, अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। तो ये है फेराडे लॉ, फेराडे के एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो फाइनली लॉ फाइंड आउट हुआ है। आपको लगेगा कि ये क्लास स्लो चल रही है थोड़ी सी, ठीक है, फास्ट में चलने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्लियर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पे जितना टाइम दे दोगे स्टार्टिंग में, आगे चल कर के स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। रेस देने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लच पे अच्छा वर्क करना है। तो यहाँ पर ये क्लच है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी जनरेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज में देख लो, कैन बी जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द कॉज बाय विच इट जनरेट, उसको दूसरे फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस पोलैरिटी इन अकॉर्डेंस विद द मोशन ऑफ सोर्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्ड लॉ जो मैथमेटिकली जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, वो क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज़ इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस रिलेशन के थ्रू हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो फ्लक्स आया, फ्लक्स में चेंज किस तरीके से हो रहा होता है ये भी मैं बता देती हूँ। जब नॉर्थ पोलैरिटी साउथ पोलैरिटी इस कॉइल के पास में थी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर, सो दिस इज़ इनिशियल फ्लक्स। जब ये दूर जाएगा या पास आ रहा होगा, अभी तो ये मैंने क्लोज बाई दिखा दिया तो ऑब्वियसली इसको मैं दूर ले जाऊँगी, ये इस कॉइल से दूर चला गया तो उस केस में क्या होगा कि इन फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, बाकी फील्ड लाइंस बाहर की साइड निकल जाएंगी ड्यू टू द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने से फ्लक्स भी कम हो जाएगा, बिकॉज फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन यही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन एरिया। तो एरिया तो इतना है, एरिया में आपने कोई चेंज नहीं किया है, केवल किस में चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट। तो फ्लक्स में वेरिएशन हो गया, इसी से हम चेंज ऑफ फ्लक्स निकालते हैं। डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस ऑफ फाई वन, फाइनल फ्लक्स माइनस ऑफ इनिशियल फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसको हम प्लस या माइनस साइन के साथ में रखेंगे, इसका कोई डायरेक्शन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। नेक्स्ट we will discuss about Lenz law, but before this I'm here to share some numericals, 2-3 numericals based on this Faraday law, so that you may get clear concept over it. These 2 numericals are given here. I have taken it from S.C. Verma, and total 100 questions are given in S.C. Verma book. You can practice over that. Over these numericals, or you can do one thing, you can go through NCERT or take any reference book I can say it, to solve numericals based on this topic. So it is given in first numerical, the flux of magnetic field through a closed loop is given by this one, right, SI unit of ABC.
तो ये तो आपका +1 टॉपिक से लिंक्ड है सॉल्यूशन में अगर आप देखो। सो डायमेंशन ऑफ फाई, ठीक है, फाई की डायमेंशन दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT², ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C होना चाहिए इक्वल टर्म में। सो डायमेंशन ऑफ फाई होती क्या है, अब फाई की वैल्यू कितनी आई थी आप यहाँ पे निकाल लो। फाई इज इक्वल टू क्या था BA, और B के लिए अगर आप लेते हो इसमें डायमेंशन में स्मॉलर वैल्यू से निकाल रही हूँ, F इज इक्वल टू IBL होता है, F ओवर IL हो जाएगा, IL इंटू A। ओके, तो यहाँ पर देखो तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर आया, यहाँ पे मीटर आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। न्यूटन की होती है ML/T-2। सो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट M, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ML/T-2, इसके बाद एक L आएगा एंड A इनवर्स। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ फाई, ठीक है, कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। डायमेंशन ऑफ AT², डायमेंशन ऑफ A जो निकालनी है हमें, और T² दैट मीन्स T², T इज़ टाइम हियर, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, T इज़ टाइम हियर। सो आप 2 को लेकर के चलोगे लेफ़्ट राइट एंड यू विल गेट द वैल्यू डायमेंशन ऑफ A कितनी आ गई यहाँ पर निकाल लो। तो ये T इनवर्स 2 है, ये T² है, देन यू विल गेट इट एज ML/T-4, ML2 हो जाएगा, ये L और L साथ में मिल गए, ML2T-4 A-1। सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ A। सेकेंड को रिलेट करो तो आपका सेकेंड के लिए मैं कर रही हूँ, दिस इज़ फर्स्ट वन, सेकेंड के लिए ML2T-2 A-1, ठीक है। दिस वन इज़ द डायमेंशन फॉर फाई विच इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B एंड डायमेंशन ऑफ टाइम T दिया हुआ था साथ में। सो B की डायमेंशन यहाँ पर आ जाएगी ML2T-3 A-1 एंड डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फाई। सो C की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू ML2T-2 A-1। सो दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ C। दिस वन इज़ योर फर्स्ट आंसर, A dimension, B dimension and C dimension. Clear? Now come to the second part. In the second part, I am going to rub it. सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे, दैट इफ़ A, B, C वैल्यूज़ आर गिवन, E निकालना है। सो E के लिए फेराडे का जो लॉ था आपका वो यूज़ करोगे, d∅dt विद माइनस साइन। सो यू विल यूज़ दिस टर्म एंड यू विल differentiate phi with respect to time. So minus d/dt of AT², A value is 0.2, so you will write the value to 0.2 T² plus 0.4 T plus 0.6. Okay, you are going to differentiate it, so minus of you, it will come as T² is 2T, ठीक है, 2T हो जाएगा, d/dt of T² is 2T, so it will come as 0.4T, 2 into 0.2 हो जाएगा 0.4 into T, ठीक है, प्लस 0.4 T हट जाता है, एक एक पावर कम होती जाती है, T हट जाएगा यहाँ पर, 0.4 into 1 यानी 0.4 आया, ये डिफ्रेंशिएट हो गया, और यहाँ पर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, सो यू डोंट नीड टू डिफ्रेंशिएट इट। टाइम हियर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। देखो पहले तो ये चीज़ कॉन्फिडेंस में रखनी है कि कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें सारे डेटाज गिवन ना हो। सो 0.4 into 2 plus 0.4, so we'll get it as 0.8 plus 0.4, this is minus of 1.2 volt. E means EMF is potential difference, so unit should be volt. So you got the answer here as minus of 1.2 volt. This is the induced EMF corresponding to the numerical. तो कुछ नहीं था, अगर पता है आपको बेसिक तो आप कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये भी सिंपल है, इसमें आपको फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कुलर लूप है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सर्कुलर लूप है तो एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज़ πr स्क्वायर। सो विल टेक इट एज πr स्क्वायर 3.14 इंटू r इज़ 5 10⁻⁻² स्क्वायर,
क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 25। सो 25 इंटू 3 मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रही हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए. सो इट विल कम एज 75 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर एरिया. ठीक है. नाउ इट्स प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ रिमूव्ड इन 0.5 सेकेंड. टाइम दिया हुआ EMF निकालना है. सो EMF दैट इज इक्वल टू d phi by dt. सो इट विल कम एज d by dt ऑफ B डॉट A. और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दे आर पैरेलल. सो डॉट मीन्स कॉस थीटा आएगा. कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड A, एरिया वेक्टर. सो B एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0. सो कॉस 0 इज 1 ईयर. विल गेट इट एज d बाई dt ऑफ BA. ठीक है. अब यहाँ पर देखो तो B तो आपका SH बाहर आ जा रहा है, dA बाई dt हो गया. क्लियर? आपको निकालना क्या है? एवरेज EMF. सो B इंटू DA बाई dt. अब DA बाई dt यहाँ पर एरिया आप निकाल चुके हो, यहाँ पे T टर्म तो आना ही नहीं है. ठीक है, पहली चीज़. तो आप क्या करोगे कि B इंटू A की वैल्यू कितनी आई थी? 75 10 to the power -4 और B की वैल्यू है आपकी 0.5 ओवर T की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.5. ठीक है, दिस इज 0.5. सो यू विल गेट द वैल्यू. इट विल कम एज 75 10 to the power -4 7.5 इंटू 10 to the power -3 वोल्ट. टाइम इंटरवल दिया था तो आपने डेल्टा टी की जगह पर टाइम इंटरवल ले लिया. और डेल्टा ए एरिया में आपका क्या है? लूप रिमूव्ड हो गया पूरी तरीके से. तो पहले तो फुल एरिया था. DA का मीनिंग क्या हो जाएगा? पहले तो फुल एरिया था फील्ड के रिस्पेक्ट में. अब एरिया कितना हो गया? A1 इज़ फुल एरिया एंड A2 इज़ 0, क्योंकि ये रिमूव कर देगा. लूप इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड. तो पूरा नीचे एकदम ला दिया गया है. दिस वन इज़ अ लूप, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड. लूप को सीधे नीचे ला दिया गया. तो एरिया, फाइनल एरिया दैट इज़ 0. सो फाइनल माइनस इनिशियल. DA का मीनिंग क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल. सो दैट विल कम एज ओनली द इनिशियल एरिया. सो दैट इज़ द वैल्यू हियर. यू विल गेट दिस टर्म. अगर एक्यूरेट वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, बट दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल in physics calculation. So you can write this answer. So I hope these two numericals are clear based on Faraday law. And next I will meet with Lenz law. Many more topics are here. Mutual induction, self induction and energy. जो आपका energy density निकली थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम काइंड ऑफ एनर्जी डेंसिटी हम यहाँ निकालेंगे. तो यहाँ के जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये टॉपिक आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज़ होने हैं. सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सारा का सारा AC में यूज़ होना है. AC जनरेटर, यहाँ पे एक जनरेटर टॉपिक भी दिया हुआ है, वो भी AC में यूज़ होना है. तो ऑब्वियसली these points are very much important. Be concentrate, be focused over this class so that you may get your concept very clear. So thank you for today. We will meet again.